Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on 2331 4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। दोस्तों, आपको मालूम है दिन शनिवार का है और आज का दिन आपके लिए ही तो होता है। आप चाहें तो शेयर मार्केट से संबंधित, जगत से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आप ही के लिए 3 टेलीफोन लाइन्स हमने खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050, 23-310-464। तीनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में। नमस्कार। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Prime Minister Narendra Modi reaches China to attend the SCO summit after concluding a productive 2-day visit to Japan. Industry bodies, economists and experts hail India's faster than expected GDP growth in June quarter. And US Federal Court rules most Trump tariffs illegal. जापान की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे। पहली तिमाही के लिए आए उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों का अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों और औद्योगिक संगठनों ने स्वागत किया। और अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने अधिकांश ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। And we begin with the first headline story. Prime Minister Narendra Modi today reached Tianjin in China to participate in the 25th summit of the Shanghai Cooperation Organization that is starting tomorrow. PM Modi, along with other leaders, will deliberate on issues such as regional security, connectivity, sustainable development and global cooperation. The summit will also adopt a 10-year development strategy. Earlier during the day, PM Modi concluded his productive 2-day visit to Japan. After attending the 15th India-Japan Annual Summit on the first day, PM Modi met with the governors of 16 prefectures in Tokyo today. PM highlighted the potential of the state's prefectures' collaboration and urged action under the State Prefecture Partnership Initiative. The PM urged the governors and Indian state governments to leverage the new initiative and forge partnerships in the fields of manufacturing, technology, innovation, mobility, next-generation infrastructure, startups and SMEs. In a major diplomatic and economic breakthrough, PM Modi and his Japanese counterpart, PM Shigeru Ishiba, unveiled a bold strategic blueprint to redefine India-Japan ties over the next decade, with far-reaching agreements across key sectors. At the heart of the outcomes was the India-Japan Joint Vision for the next decade, a 10-year strategic framework identifying 8 priority areas: economic partnership, economic security, mobility, ecological sustainability, technology and innovation, health, people-to-people links, and state-prefecture engagements. Among the most notable economic announcements was Japan's commitment of 10 trillion yen in private investments in India over the next decade. The two sides also launched a comprehensive economic security initiative with a fact sheet listing cooperation in semiconductors, clean energy, telecom, pharmaceuticals, critical minerals and emerging technologies. इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि पहले कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे मेहमान होते हैं आज के वो। केशव सबसे पहले कॉलर हैं दिल्ली से। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है? हेलो, नमस्कार सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर कि पहला जो प्राइवेट बैंक जो होते हैं उसमें एफडी हमारी कितनी सपोर्ट मानी जाएगी,
क्योंकि 1 साल की एफडी अगर हम उसमें कराते हैं, क्योंकि सरकारी बैंकों में तो काफी हद तक इंटरेस्ट कम हो गया है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे पास ये कॉल आती है प्राइवेट की, आप मार्केट में शेयर में ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं करते, उनसे हम बात करें ना करें, तो अगर जानकारी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम शेयर मार्केट और एफडी में ना जाके अगर गोल्ड के बिस्किट खरीद लें तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा 1 साल जी 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 राजीव जी। इन्होंने कई सवाल एक साथ पूछे हैं, जितना याद रहेगा जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली चीज इन्होंने पूछी एफडी के बारे में। तो देखिए, बैंकों को आप अलग अलग श्रेणी के बैंकों को आप समझ लीजिए कौन कौन से हैं। पहली चीज ये कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जिनमें प्राइवेट और पब्लिक यानी निजी बैंक और सरकारी बैंक, ये दोनों ही जो कमर्शियल बैंक व्यावसायिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। वहां पर आमतौर पर आप निश्चिंत रह सकते हैं। कभी कभार कुछ बैंकों को लेकर के कभी कोई खबर आ सकती है कि वहां थोड़ी दिक्कत है, जैसे उदाहरण के लिए मैं गिन सकता हूं यस बैंक, लेकिन उस बैंक को फिर बाद में संभाला गया और एक कंसोर्शियम बना जिसका नेतृत्व एसबीआई ने किया, और फिर यस बैंक आज की स्थिति में वापस मजबूत स्थिति में लौट आया। वहां पर निवेशकों का कोई नुकसान नहीं होने दिया गया। तो चाहे निजी हो या सरकारी हो तो वहां पर तो कोई आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो कमर्शियल बैंकों की श्रेणी जो है वहां पर आप सामान्यतः निश्चिंत रह सकते हैं। और दूसरी श्रेणी होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा आपको ब्याज देते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको थोड़ा सा वहां जोखिम अधिक मान करके चलना पड़ेगा। हालांकि एफडी है तो वादा वही है कि आपको जो भी तय समय के बाद पूरा पैसा वापस मिलेगा ब्याज समेत, लेकिन कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां प्री मैच्योर विड्रॉल जहां करने की स्थिति होती है, उसमें थोड़ा जरूरत से ज्यादा। उसके बाद अगली श्रेणी है कोऑपरेटिव बैंक की, ग्रामीण बैंकों की। वहां पर कई बार खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोई बैंक जो है वहां पर मोरेटोरियम लग गया आरबीआई की तरफ से और पैसा कुछ समय के लिए निकालना अटक गया। तो ये अलग अलग श्रेणियां हैं, उनमें आप ध्यान रखें। आमतौर पर आप अगर कमर्शियल बैंक्स के साथ रहते हैं तो ज्यादा सुरक्षित माना जाएगा। इनके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, हम करें कि नहीं। मार्केट मंत्रा के इस मंच से हम हमेशा कहते हैं कि आप निवेशक बने, ट्रेडर न बने, क्योंकि जो ट्रेड करने में घुस आते हैं आज खरीदा, वो अक्सर नुकसान के ये होते हैं। तो हम यहां से हमेशा यही सलाह देते हैं कि अच्छे फंड का चुनाव कर सकते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स को आप देख सकते हैं, कंपनी की प्रोफाइल देख कर जाएं, और ट्रेड करने से हमारी सलाह ये होती है कि बचना चाहिए, क्योंकि ये मंच ट्रेडिंग के लिए नहीं हम उस तरीके से सलाह देते हैं। तो उस तरीके से जो भी कॉल्स आते हैं उसमें ज्यादातर ट्रेड के लिए होते हैं, और अपना अनुभव ये कहता है कि कोई भी आपको आज की स्थिति में मुफ्त की सलाह नहीं देता, इसलिए ऐसे कॉल से बचना चाहिए। And our next caller is from Kolkata. Mr. Mukherjee, welcome to the show. Please ask your question. हेलो जी मिस्टर मुखर्जी, स्वागत है, अपना सवाल पूछें। হ্যাঁ স্যার বলি, আমি বাংলায় বলবো, অসুবিধা নেই তো? अच्छा, आप पूछ लें बांग्ला में सवाल, हम उसका जवाब हिंदी या इंग्लिश में देंगे, लेकिन आप ब्रीफ में बहुत छोटा पूछे। আমি বাংলায় বলছি স্যার, কোন মিউচুয়াল ফান্ডের কোন কি লাস্ট অবধি আমার 15 বছর হয়ে গেছে। जी ठीक है, ये म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर सकते हैं, कौन सा बेहतर हो सकता है। देखिए, 40 से अधिक म्यूचुअल फंड घराने हैं, फंड हाउसेज हैं। आप उनमें से कैसे चुनाव करें वो आप थोड़ा सा, एक यहां पर किसी खास फंड हाउस का नाम बताया नहीं जा सकता इस प्लेटफॉर्म पे। आपको ब्रांडिंग के हिसाब से कौन सा फंड अधिक सक्रिय है, किसकी अधिक प्रतिष्ठा है, उन सब के हिसाब से आप फंड हाउसेज के बीच में चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी चूंकि बहुत सीमित है, तो मैं एक सलाह अपनी ओर से दूंगा कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने जा रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड वहां से शुरुआत करें। आप सेंसेक्स या निफ्टी का इंडेक्स फंड लें, उसमें एसआईपी शुरू करें इस तरीके से, और ये एसआईपी इंडेक्स फंड की आप सेंसेक्स या निफ्टी की करेंगे तो वहां पर फंड हाउस चुनने को लेकर के आप बहुत गलत नहीं होंगे, चाहे आप जो भी नाम चुन ले, लेकिन थोड़ा सा टेन्योर अपना जरूर रखिएगा, 3 से 5 साल का एसआईपी करिए। और सिर्फ 3 साल 5 साल नहीं, आप 7 साल 10 साल 15 साल, जब तक आप मतलब एक तरह से कामकाजी जीवन है, जब तक आपकी कमाई रहती है, सक्रिय रूप से आप कमा रहे हैं, तब तक आपको चलाते रहना चाहिए। अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आप समय समय पे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जी
आमतौर पे निवेश तब तक करें जब तक आप कमा रहे हैं। और यही सलाह है, क्योंकि जब आप किसी में एसआईपी करते हैं किसी फंड में, तो सिर्फ आप पैसे का निवेश नहीं करते, पैसे के निवेश के साथ साथ आपको समय का भी निवेश करना बहुत जरूरी है। जितना लंबा टेन्योर होगा उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मार्केट मंत्रा में एक बार फिर स्वागत है। और राजीव, जिस बात की अभी हम चर्चा कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के लिए समय भी निवेश करना बहुत जरूरी है। और एनपीएस भी एक ऐसा ही टूल है जिसमें आप एक लंबे समय तक निवेश करते हैं और एक बड़ा कॉर्पस आप रिटायरमेंट के समय तक लेते हैं। अमित हमारे अगले कॉलर होंगे दिल्ली से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछ लें। सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार। मेरा प्रश्न सर से, राजीव धनन सर से, ये है कि जो हमारा व्यापार घाटा है यूएस के साथ में, वो कितना है? भारत में बने सिम और सेमीकंडक्टर कब तक बाजार में आ जाएंगे? और जो हम कैलिफोर्निया से आलमंड आयात करते हैं और वाशिंगटन का सेब आयात करते हैं, क्या हम इसको कम नहीं कर सकते हैं? धन्यवाद। अमित को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस का व्यापार घाटा भारत का नहीं है। की सबसे बड़ी तकलीफ भारत से और खासतौर पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से यही है कि भारत ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ। कुछ गिने चुने ऐसे बड़े देशों में अमेरिका है जिसके साथ भारत ट्रेड सरप्लस में है, यानी हम उनको निर्यात ज्यादा करते हैं, उनसे सामान कम मंगाते हैं। और अमित जी को कैलिफोर्निया के बादाम और सेब इन सब की याद है, लेकिन असल में इनका आयात उतना बड़ा नहीं है भारत का। हम उनसे काफी बड़े स्तर पे हथियारों का आयात करते हैं, तेल का आयात उनसे हो रहा है। वो सब बड़े आइटम हैं, उन सब की मात्रा ज्यादा बड़ी है अगर हम कीमत के हिसाब से देखें तो। अब देखते हैं ट्रेड। बिल्कुल। लेकिन ये यहां बताना पड़ेगा, क्योंकि कई और लोगों को भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसमें भारत फायदे में है, ट्रेड सरप्लस में है, और अमेरिका व्यापार घाटे में है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, यही एक बहुत बड़ी समस्या थी अमेरिकी प्रशासन के साथ, जिसको लेकर टैरिफ बढ़ाया गया और उस टैरिफ से भी हम लोग बहुत डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और जीडीपी के हमारे नंबर्स जो हैं उसको एक तरीके से कितनी रेजिलियंस है हमारी इकोनॉमी में, जो ट्रम्प साहब ने कहा डेड इकोनॉमी, अभी उनको जीडीपी के आंकड़ों से सबसे बड़ा जवाब मिल गया होगा कि भारत की इकोनॉमी कहाँ किस मोर्चे पर कितनी मजबूत है। महाराष्ट्र चलते हैं। राजीव, कोल्हापुर। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर, सवाल पूछ लें। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मेरा सवाल है कि लास्ट वीक में मार्केट वैसी बहुत गिरी है, वो टैरिफ की वजह से रहेगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने कौन से सेक्टर से बाहर निकलना चाहिए और कौन से सेक्टर में बने रहना चाहिए? और आगामी नेक्स्ट वीक में मार्केट बढ़ सकता है क्या और भी नीचे जाएगा? थैंक यू जी। रत्नाकर जी, जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उनके चलते नए सप्ताह की शुरुआत तो अच्छे उत्साह के साथ होनी चाहिए। वो उत्साह कितना लंबा टिकेगा ये एक जरूर प्रश्न रहेगा और हमारे लिए भी ये देखने की बात है। कई बार ये होता है कि बाजार की प्रतिक्रिया किसी अच्छी खबर पे कितनी अच्छी रहती है या किसी बुरी खबर पे कितनी बुरी रहती है, उससे हमें बाजार के मूड का पता चलता है। तो जीडीपी के आंकड़ों पर बाजार में कितना उत्साह बनेगा वो हमें नए सप्ताह में देखने को मिलेगा। यदि बाजार इन्हीं स्तरों से पलट जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन चूंकि अनिश्चितताएं काफी हैं और जीडीपी के आंकड़े जो हैं उनको भी हम अगर समझें तो उसमें कई सारी चीजें एक बार की हैं। उसमें बेस इफेक्ट का असर है, सिर्फ पहली तिमाही के दौरान कुछ डेवलपमेंट्स रहे, जैसे निर्यात में अमेरिका में स्टॉकिंग की गई भारतीय सामानों की, भारत से भेजे हुए सामानों की, काफी सारे फैक्टर्स हैं। जो ऐसा नहीं है कि पहली तिमाही में अगर 7.8% का आंकड़ा आ गया तो अगली दूसरी तिमाही तीसरी तिमाही के भी आंकड़े वैसे ही आएंगे, वो कोई जरूरी नहीं है। हालांकि दूसरी तिमाही भी अच्छी रहने की उम्मीद है, लेकिन आप ये सोचें कि अभी यही आंकड़ा हर तिमाही में आएगा, वो भी नहीं होगा। तो बाजार अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में जरूर रहेगा। यहां हमें नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखेगी। वो अच्छी शुरुआत कितनी टिकेगी, कितनी दूर तक जाएगी, ये अभी नजर रखने वाली बात है। टिंकू जी बिहार से हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका टिंकू, सवाल पूछ ले। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते टिंकू जी, पूछ लें सवाल। सर मेरा 2 सवाल है। मैंने कि एमपीएस अकाउंट जो है कितने का उम्र वाले है, 42 से 40 वाले है, और कितने का कम से कम
सालाना जमा करना पड़ेगा पेंशन योजना, और एक सहारा का एफडी है, पैसा मिलेगा या ना मिलेगा सर? यही 2 सवाल है मेरे। ठीक है, एनपीएस पर जानकारी दें राजीव जी। देखिए, एनपीएस अच्छी चीज है, वहां पर आपको पैसे लगाने के लिए अभी भी अगर आप 40, 42, 45 के बीच में हैं तो बहुत देर नहीं हुई है, थोड़ी देर हुई है। आमतौर पे अगर आप रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए 25-30 के बीच में शुरुआत कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन अभी भी आपके पास समय है और यहां से भी आप आराम से 15-20 साल तक तो इसमें आप निवेशित रहेंगे, लगातार योगदान करेंगे, तो इतने समय में आपके लिए रिटायरमेंट के लिए ठीक ठाक पैसा जमा हो सकता है। तो जरूर आप इस पर विचार करें, और अलग अलग इसकी स्कीमें होती हैं, उसमें कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, आपको उन ऑप्शंस को आप ठीक से ध्यान दे करके चुनिएगा कि आपको इक्विटी यानी शेयर बाजार वाला निवेश ज्यादा चाहिए, आपको डेट वाला हिस्सा जिसमें आपको बंधा बंधाया पैसा जरूर मिलता है, प्रॉमिस्ड पैसा होता है, वो मिलना चाहिए। वो ऑप्शंस आप थोड़ा सा एक मिला जुला ऑप्शन अगर आप रखेंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। And from Bihar, let's go to Ghaziabad, from where we have our next caller. Gaurav is joining us. Gaurav, welcome to the show. Please ask your question. Namaste, Market Mantra team. Sorry, in wake of these sanctions tariff from America, how it will affect our dollar earning and dollar reserve? Will it affect our balance of payment? And इसी परिवेश में सर क्या रिटेल इन्वेस्टर को, जैसे हम लोग हैं, we should be keep investing because ये बादल छट जाएंगे? Is it the right time to keep investing every time? Because market is stuck at 80,000 काफी टाइम से. So this is basically time to recoup, and it will go beyond 100,000 say after negotiations are over. So FIIs are withdrawing. That is the reason. Today I continue to invest. क्या वजह है? क्या what is your opinion about all this? जी देखिए गौरव जी, बहुत सारी चीजें मिले जुले तरीके से काम करती हैं बाजार में। कोई एक फैक्टर वही सारा असर लेकर के आता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे आप देखें तो बाजार का गिरना अभी ट्रंप टैरिफ के बाद से या नवंबर में वहां डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए राष्ट्रपति चुनाव में, उसके बाद से नहीं है। हमारे बाजार ने पिछले साल सितंबर से ही गिरना शुरू कर दिया था। तो वहां पर कहीं बाजार को अर्निंग्स को लेकर के चिंताएं थी, वैल्यूएशंस को लेकर के चिंताएं थी, तो उसकी वजह से बाजार में कहीं हमने एक टॉप बनाया और उसके बाद बाजार करेक्शन के मोड में रहा। दूसरी तरफ भारतीय बाजार से पैसा क्यों निकल रहा था और अभी भी निकल रहा है, उसके कारण भी बदलते रहे हैं। जैसे बीच में अगर कुछ विदेशी निवेशकों को लगा कि नहीं, भारत से ज्यादा सस्ता बाजार चीन हो गया है, चीन बीच में काफी वहां शेयर बाजार गिर गया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक होते हैं वो अलग अलग बाजारों के बीच में देखते रहते हैं कि कहां बेहतर मौके मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार को लेकर के कोई ऐसी लंबे समय की चुनौती नहीं है या चिंता नहीं है कि आप निवेशित रहने या न रहने का फैसला करें। इस समय बाजार में जैसा कई बार कहा जाता है कि निवेशित नहीं रहना ही सबसे बड़ा जोखिम होगा। तो आप पैसे लगाते रहें समय समय पर, जो आपकी बचत है उसका एक अच्छा हिस्सा इक्विटी में जाना चाहिए। काफी कुछ वो डिपेंड करता है आपका एसेट एलोकेशन कैसा है, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कैसी है, लेकिन एक थंब रूल ये मान के चलिए कि अगर आपके पास पर्याप्त समय है आगे, तो आप इक्विटी में अपनी बचत का एक अच्छा हिस्सा नियमित रूप से, नियमित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप निवेशित रहें और निवेश करते रहें। बिल्कुल। के शुक्ला अगले कॉलर हैं, महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए। शुक्ला जी, स्वागत आपका, क्या सवाल है? जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कमोडिटी मार्केट है, उसमें जो डेरिवेटिव पे ही टोटल सुना हूं मैं कि ट्रेड होता है, तो क्या वो कैश मार्केट की तरह जो उसका वैल्यू रहता है महीने के लास्ट में 0 हो जाता है, ऐसा है क्या? और सेकंड हाँ, यही क्वेश्चन जरा। जी पहले तो डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहने की ही सलाह हम लोग देते हैं। जी बिल्कुल। तो यहां पर देखिए, डेरिवेटिव में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमोडिटी में सिर्फ डेरिवेटिव ट्रेड ही होता है जी। आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी विकल्प रहता है, लेकिन वो उनके लिए है जिन्हें सही में, मान लीजिए आप 1000 बोरी गेहूं की खरीदेंगे तो फिर आपको अपने पास लेकर के रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव मार्केट में वो चीज नहीं होती है। वहां पर आप जैसे कैश सेटलमेंट होता है, तो जो भी अंत में जो भी सीरीज होती है, हर सीरीज के अंत में वहां पर सेटलमेंट हो जाता है। यानी अगर आपके फायदे में ट्रेड गया है तो आपको पैसा मिल जाता है, और अगर आपके नुकसान में गया है तो फिर आपके बिल्कुल जो भी पैसे आपने प्रीमियम के तौर पे दिए थे वो चले गए।
फिलहाल एक छोटा सा और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्दी वापस लौटते हैं। मार्केट मंत्रा में एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रीतम और योगेश जुड़े हुए हैं। उन तक जाने से पहले हम बता दें कि बेहतरीन जीडीपी के आंकड़े आए हैं पहली तिमाही के लिए 7.8%। इसको विस्तार से हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी और ये बताना चाहेंगे कि देश भर के उद्योग निकायों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बेहतरीन आंकड़ों का स्वागत किया है। देश की जीडीपी वृद्धि दर पर सभी ने सरकार के प्रयासों की सराहना की है। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीईओ और महासचिव रंजीत मेहता ने कहा है कि इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर बेहद मजबूत और लचीली साबित हुई है। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद गोयनका ने कहा कि पहली तिमाही के लिए जारी जीडीपी आंकड़े स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और बेहतर होती गति का संकेत देते हैं। जीडीपी के आंकड़ों की सराहना करते हुए आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने भी कहा कि पहली तिमाही के आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी लचीलेपन को दर्शाते हैं। भाजपा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी कहा है कि अच्छे आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है। वहीं अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत लगातार सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो ये क्या इंडस्ट्री कह रही है और जीडीपी के आंकड़े अपने आप में गवाह हैं। हमने इस पे चर्चा भी की, आपने बताया भी कि इसका असर जो है मार्केट पर अगले हफ्ते पड़ सकता है। फिलहाल अब योगेश के पास चलने की बारी है। योगेश जी जल्दी से सवाल पूछ लें। बिल्कुल नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरे दो सवाल हैं। पहला तो यही है कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, क्या इसका ये कैसा विरोधाभास है कि जो कंपनियों की तिमाही के नतीजे आ रहे हैं वो मुनाफा नहीं दिखा रहे हैं पर जीडीपी आंकड़े बेहतर आए हैं, तो ये कैसे नापा जाता है? दूसरा सवाल ये है कि मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से क्या अभी ये फेयरली वैल्यूड है, लमसम करने का मौका है या फिर अभी भी वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच है? जी देखिए राजीव क्या कहेंगे आप? देखिए विरोधाभास जैसी कोई स्थिति नहीं है जी। जो हमें कंपनियों के नतीजे भी देखने को मिले हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि वहां कोई डीग्रोथ है। बाजार ने जितनी उम्मीदें की थी उसके मुकाबले कहीं कहीं पे थोड़ी सी उस हद तक उम्मीदें पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन जो है वो पूरब जा रही है और दूसरी ट्रेन पश्चिम जा रही है। वैसा मामला कुछ नहीं है कि आप इसे विरोधाभास कहें। और शेयर बाजार में जरूर हमें कई बार लगता है कि अच्छा बाजार जो हमारे इंडेक्स हैं वो एकदम नए रिकॉर्ड पे नहीं पहुंचे हैं, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है। और लेकिन इस उतार चढ़ाव के चलते जो आपका वैल्यूएशन वाला सवाल है वो ही एड्रेस होता है। वैल्यूएशन अब उतने स्ट्रेच नहीं है। जो आप मैं अगर तुलना करूं सितंबर 2024 की स्थिति से, तो अब उस समय मूल्यांकन थोड़े स्ट्रेच दिखने लगे थे और कुछ खास पॉकेट्स में फ्रॉग या बुलबुली जैसी स्थिति भी कहीं कहीं हल्की दिखी थी। अब उस स्थिति से काफी हद तक हम मूल्यांकन को नॉर्मलाइज्ड होते हुए सामान्य स्तरों पर लौटते हुए देख रहे हैं। तो नियमित रूप से आपको बाजार में निवेश करने के लिए अच्छे मौके लगातार मिलते रहेंगे। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में करें या म्यूचुअल फंड के जरिए करें, नियमित निवेश करते रहें तो आपको इन सब को लेकर के बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ कंपनियों के नतीजे अगर उतने बेहतर जो कि उम्मीद थी नहीं आए हैं तो उसका जीडीपी पे सीधा आप नहीं मान सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खास करके सर्विसेज सेक्टर ने एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अपने श्रोताओं के लाभ के लिए यहां बता दें कि दरअसल कई लोगों के सवाल ये आते हैं कि जीडीपी दरअसल होती क्या है। तो ये बताना चाहेंगे कि किसी भी देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसमें एक नियत अवधि के अंदर जितने सामान बिकते हैं उनका जो अंतिम मूल्य का योग होता है वही देश की जीडीपी होती है। सर्विसेज भी जी, जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड रहता है। And our next caller is from Delhi. Preetham is calling in. Preetham, welcome to the show. Please ask your question. I guess there is no call from Preetham. There's a technical slag. Till that time, let's go to our next story. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that the nation's GDP growth rate of 7.8% will have a positive impact on its energy consumption, addressing the media in New Delhi. Mr. Puri highlighted that if the economy is doing well, energy consumption will go up. And we have our next caller from Kolkata, DR Acharya. Acharya ji, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर नमस्कार सर। नमस्कार आचार्य जी, अपने रेडियो सेट को प्लीज जरा बंद कर दीजिए। सर मैं DR आचार्य, रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर,
And for small term, I was in charge of anti-hijacking cell as Rashtrapati Bhavan. मेरे सवाल है ये एनपीएस में मैक्सिमम कितना पैसा एक साथ रख सकता? हाँ, एनपीएस में मैक्सिमम रख कितना सकते हैं? एनपीएस में आपको लगातार हर महीने जी लगाना होगा पैसे। वो कोई लमसम इन्वेस्टमेंट वाली चीज नहीं है। आपको हर महीने अपनी अर्निंग्स, आपकी जितनी भी बचत है उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि आप एनपीएस में कितना पैसा लगाना चाहते हैं हर महीने। जो पैसा आप हर महीने लगा सकते हैं आप उसी हिसाब से कमिटमेंट करें। बिल्कुल। And we go over to our next story. A U.S. federal appeals court has struck down several reciprocal tariffs imposed by U.S. President Donald Trump, saying he unlawfully leaned on emergency powers to impose the import taxes. The court observed International Emergency Economic Powers Act does not authorize tariffs like the ones President Trump used the law for earlier this year. और हम ये बता दें कि हमने चर्चा की कि अगले सप्ताह मार्केट कैसा हो सकता है, लेकिन इस सप्ताह मार्केट कैसा रहा? पूरे सप्ताह का घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह लगभग 2% की गिरावट रही है। सेंसेक्स लगभग 1,500 अंक गिरा, 79,810 पर रहा। निफ्टी में भी 443 अंक की गिरावट रही और ये 24,427 पर रहा। अगस्त महीने में सेंसेक्स में 1.4% की गिरावट रही है, जबकि निफ्टी में 1.4% ही की गिरावट रही है। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप इस सप्ताह 3% गिरा, स्मॉल कैप में भी 3% की ही गिरावट दर्ज की गई। राजीव, आज का हम कहें तो समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। आपने कई विषयों पर चर्चा की। तमाम श्रोताओं का और आपका धन्यवाद। Namaskar. And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi reaches China to attend the SCO summit after concluding a productive 2-day visit to Japan. Industry bodies, economists and experts hail India's faster than expected GDP growth in June quarter. And US federal court rules most Trump tariffs illegal. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.